and my dear students of PhD JLB Lakhimpur Assam. It is a matter of great pride and joy to introduce our esteemed speaker for today's assembly, Shri Jagadish Deshmukh, also known as Jagannath Yatra Das. An illustrious alumnus of Navodaya Vidyalaya, he studied at JNV Jalgaon, Maharashtra from 1993 to 1998. During his school years, he displayed exceptional academic brilliance, securing first rank in the 10th standard at JNV Jalgaon. A round of applause for our speaker. He secured the second rank in the 12th standard in the Nashik division of the state board. He went on to pursue BTech in mechanical engineering from the prestigious BJTI College, Mumbai, graduating in 2004. Following this, he dedicated 8 years as a lecturer in 3 engineering colleges affiliated with Pune and Mumbai universities, shaping young minds with his knowledge and guidance. Since 2012, he has devoted himself fully to the International Society for Krishna Consciousness. I'm sure you all have heard of ISKCON. Okay, so he is working for ISKCON Mumbai, spreading the timeless wisdom of the Bhagavad Gita and promoting spiritual growth in the society. In the last 3 years alone, he has visited 257 Jawahar Navodaya Vidyalayas across 27 states and 6 union territories, covering 8 Navodaya Vidyalaya Samiti regions, delivering impactful talks on life skills and values under the Indian knowledge system, which is an initiative of the NEP 2020. Over the past 12 years, he has also reached more than 1,000 public schools and colleges with his message of value-based education. We are truly honored to have such an inspiring personality, a proud alumnus of JNV, and a dedicated spiritual guide among us today. Let us welcome Shri Jagadish Deshmukh with a big round of applause. Sir, we would like to honor you. VP sir, you are requested to felicitate our guest with a traditional Assamese gamucha and a bouquet prepared by our students. Manik sir, kindly take a photograph, please. Dear students, it's a proud privilege to have a JNV alumnus who has done exceptionally well in greater spheres of life, and not only in academics, but he has also touched the realms of the spiritual domain, which is very, very difficult to reach actually. So please listen patiently to whatever he has to say, as it is going to benefit all of you in the long run. Okay? So without much ado, I would like to hand over the mic to our esteemed speaker to carry on with his lecture. Thank you. इनको बंद कीजिए, इनको किया है। फर्स्ट वाला थैंक यू। ये ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, बंद क्या? So first of all, thank you, teacher and our teachers for giving me the time instructor here at JNV Lakhimpur of Assam State. I wish you all good morning. Good morning, sir. I will be happy to be with you here to serve you in whatever possible way. I came day before yesterday, but yesterday was a busy day, last day of regional course. So I waited for today morning to have this class session here on life skills and values.
स्किल्स के विषय में हम बोलते हैं, स्किल्स तो अनेक है, काउंटलेस स्किल्स आर देयर, लाइक स्टडी स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स, डांसिंग स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल्स, मेमोरी स्किल्स, काउंटलेस आर देयर। हाउ टू ईट, ईटिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, ऐसा असंख्य है, स्केचिंग, पेंटिंग, ये स्किल्स होते हैं। तो but the topic is today topic is life skills, which is the most important topic. Because life has the highest value, life has the highest importance, highest significance, isn't it? Cooking skills have importance, cooking skills. Study skills have importance. Playing sports skills have importance. And many other skills have importance. But the highest importance is for life skills. Because it is of life. This skills about life. And one topic is life values. Values are also countless. Some things have less value, some things have more value, and some things have highest value. What is that? Life. Life has the highest value. Values are like cleanliness, value. Speaking truth, truthfulness, सत्य बोलना, ये क्या है? मूल्य है। एक मूल्य होता है दूसरों का सम्मान करना, रिस्पेक्टफुलनेस, राइट, बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग थैंकफुल, कृतज्ञ होना भी क्या है? एक मूल्य है। बीइंग हम्बल, इधर से भाई इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिटी बोलते हैं कि नम्रता, जैसे संस्कृत में सुभाषित है, विद्या विनय शोभते, क्या बोलते हैं? बोलो, विद्या सबको बोले। इसलिए जो अच्छा बैठे हैं वो लोग झुके हैं, पता नहीं कहाँ सो गए कुछ लोग, थोड़ा खड़े अच्छे से बैठो, सावधान। और यहाँ देखो, हम आपके ज़्यादा समय दिए, 2 दिन यहाँ से आपके लिए रुके हैं। तो महाराष्ट्र कहाँ पे हैं, आसाम के लखीमपुर कहाँ पे हैं, लेकिन हम आए हैं, आपके लिए आए हैं। हम आपको अपना मानते हैं, ये बच्चों से प्रतिज्ञा लिए थे, उसका हम पालन करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं हम? इंडिया इज माय कंट्री। इंडिया में लगा बस आसाम हो ले गया है, तो हम सोचे थे कि हम पूरा देश को कम से कम जाएंगे, देखेंगे, सेवा करने का प्रयास करेंगे। और आगे बोलते हैं ऑल इंडियन सरमाए, बस बोलने की बात है। हाँ, बोल लिया सुरेश। इसको पालन करना चाहिए, सभी अपने हैं। नहीं सर, हमारा माता पिता तो अलग है, हम भाई बहन कैसे होंगे? ऐसा सोचते हैं। थोड़ा आगे बताऊंगा हम भाई बहन कैसे बनते हैं, क्योंकि हम गौरी नहीं हैं जिसका माता पिता सबका अलग होता है। हम एक जीव है, जीव, आत्मा भी कहते हैं, आत्मा। सभी जीवों का जो आत्मा है, सभी जो जीव हैं, वो एक ही भगवान की संतान है, सबका माता पिता एक ही है, इसलिए हम सब भाई बहन बनते हैं। तो मनुष्य नहीं, सभी जीव, कुत्ता, गधा, बिल्ली, पशु, पंछी, पेड़ पौधा, सभी जीव अपने क्या बनते हैं? फैमिली मेंबर्स, भाई बहन बनते हैं। तभी तो हम बोलते हैं, अपने संस्कृत का विचार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा है, वो था कहीं पे कि G20 का समिट जो हुआ था, उसका एक थीम था कि वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ संस्कृति का विचार है, महान विचार, कि हम पूरे विश्व को अपना एक सुंदर क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं, फैमिली मानते हैं। यहाँ किसी का द्वेष नहीं होता है, यहाँ किसी को हम नीचा नहीं दिखाते हैं। हम लाते भी हैं, रंग जाति पर भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संतान धरती मांगे हम। आगे धरती पूजा स्थान हो, माता है, माता का स्थान हम पूजनीय होता है। तो हम जब समझेंगे हम कौन हैं, तो ये जो अपनापन है, अपनापन, स्वयं को बॉडी मानेंगे, मैं बॉडी हूँ, तो फिर भेद आएगा, भेदभाव आएगा। आप
देखो समाज में ऐसा होता है, एक ही माता पिता के 5 बच्चे होते समझो, कभी 5 तो बड़ी मुश्किल हो गया है, 2 एक में ही होते हैं, तो जो भी है समझो वो लोग माता पिता कॉमन है, एक ही है, लेकिन 2 भाई भी एक दूसरे को अपना नहीं मानते आजकल, थोड़े से पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े करते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं। क्यों? सोचते हैं बॉडी है और अपने बॉडी के सोचते हैं, हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर रहने वाला दिव्य जीव है, जिसे आत्मा भी कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। तो समझना आवश्यक है कि अपनी पहचान क्या है, अपनी पहचान। ओके, इसको मैं बोल रहा था वैल्यू सिचुएशन में कि विद्या विनय न शोभते, विद्या विनय न शोभते, अपनी विनय की शोभा किसमें होगी? कितने अंक आए, कौन सा पोजिशन मिला, अरे जो की बात है उसमें नहीं होती। हमने अपने जीवन का समाधान और सुख पाया अंकों से नहीं, इस ज्ञान से, जीवन के ज्ञान से पाया। जब हमने स्वयं को समझा, दुनिया को समझा कि वास्तविक सत्य क्या है, तो हमें समाधान हुआ। नहीं तो मुझे तो ना हमेशा बस सेकेंड पोजिशन मिलती थी स्कूल कॉलेज में, कोई समाधान कर नहीं हुआ। वो 2 दिन नया नया हाँ मुझे अच्छे अंक आए बोल के सुख लगता है, लेकिन सुख टिकता नहीं है, वो टिकता नहीं है। हमेशा लगता था क्या कमी है, क्या कमी है। वो कमी ये थी कि हम जीवन को नहीं समझते थे, जीवन को नहीं जानते थे। जीवन को जानना मतलब स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, इस सवाल को आना चाहिए। यदि आप सोचोगे मैं बॉडी हूँ तो हमेशा चिंता होगी, हमेशा दुख होगा, हमेशा असमाधान होगा। क्यों? इस बॉडी में दोष होते हैं, इस बॉडी में कमियां होती है, ये बॉडी हमें दुख देता है बहुत समय। जैसे बच्चों को वेट तकलीफ होती है, बोले की तरह हो आधा घंटा 1 घंटा थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब बॉडी हमें तकलीफ देती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं बॉडी हमें सुख देगा, ये गलती है। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी कैसे होगी गाड़ी? कभी आपने गाना सुना होगा तो गाती भी होंगी, जिंदगी एक सफर, आगे सबको पता है। तो मैं देश में गया हूँ तो बच्चे जानते हैं यहाँ कल क्या हो, इसलिए आपको सबको जाना है, आपको पता है कहाँ जाना है, नहीं पता भूल गए। जिसमें नौकरी में जाए हम 5 साल, आपको 4 साल तो हो गए, आपको 10 वाली बच्चे, और जो 12th में गए हैं उनको कितना साल हो गए? 6 साल तो हो गए। ये बात नहीं है कि आप आने के बाद भूल गए अपने गाँव को, जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय की सेवा, जाना कहाँ, ऐसी बात तो नहीं है। आप अपने गाँव को भूले नहीं है, जैसे भूलेंगे सर। स्कूल तो टेम्पररी है, स्कूल तो टेम्पररी है, आपका घर परमानेंट है। हाउस मास्टर्स, क्लास टीचर्स टेम्पररी होते हैं, बदल भी जाते हैं बिना बोले। आपको क्या से परमिशन देता है कि मैं जाऊँ क्या ट्रांसफर लेके, तो आप अपना निकल ही जाते हैं। लेकिन माता पिता आपके बदलते, आप गाँव गए माता पिता बदल गए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। माता पिता सेम रहते हैं, आपके भाई बहन भी यहाँ पे कभी तो होता है। हाउस में आते हैं तो जो लोग चले गए, नए बच्चे आ गए, जो बदल जाते हैं, होता है चल जाता है, बच्चे आ गए, नए बच्चे आ जाते हैं। जैसे कि आपका जनरल स्पोर्ट्स कितने जगह से कितने लोग आए थे, तो समझिए कि हम जो ये गाना गाए जिंदगी एक सफर, तो लाइफ क्या है? जर्नी। लाइफ क्या है? जर्नी। मतलब क्या है? पता होना चाहिए कहाँ से निकले हैं, कहाँ हमें जाना है। प्लीज लास्ट पॉइंट सर, मैं गलती किया है, आपका सेशन जो है एकदम शुरू कर दिया। हम थोड़ा 2 मिनट जो है प्रेयर बोलेंगे। प्रेयर बोलने से थोड़ी मन की शांति होती है, बुद्धि का थोड़ा विवेक कर जाता है। तो हाथ जोड़िए सब लोग, आपकी मंदिर में सुंदर देवी का मंदिर भी है, देवी सरस्वती का विद्या देवता जो है, तो हम जो विद्या देवता है उनका ही जो उदाहरण है। देवी हमेशा भगवान का गुण गाती है बिना वजह कर, एक हाथ से भगवान का नाम जपती है, तो एक हाथ में उनके वेद होते हैं, वेद तो ज्ञान की पढ़ती रहती हैं, विद्या की देवता देती रहती है।
तो हम उनका प्रणाम करेंगे या उनका आशीर्वाद देंगे। तो लोग हाथ जोड़िए, पीछे बढ़ते हैं, अच्छे से बैठिए, हाथ जोड़िए सब लोग, अच्छे से हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने से आपका भाई कम ही होगा, भगवान आपके लिए आशीर्वाद देंगे। 2 मिनट बस, थोड़ा सा बहुत आवाज भी है, आपका मन के अंदर जो है वो कुछ आवाज चलती होगी तो शांत हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए, मैं जो बोलता हूँ उसे सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, जब मैं झुकता हूँ। बोलो ओम। सत्यमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम मृत्युर्मा मृतं गमया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो हमने भगवान का नाम लिया, भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वो हम सबके माता पिता है। जब भी हम गाते हैं, स्कूल में खड़े जाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। तो सुना आपने, गाते होंगे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही कभी, तुम्ही हो बंधु सखा। यदि हम समझ जाए भगवान अपने बंधु सदा के लिए, साथी माता पिता सदा के लिए, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया में सब कुछ, दुनिया भी स्वयं क्या है, थोड़े दिन का है, नाशवान है, बदलने वाला है, दुख देने वाला है। ये सत्य है। अपना शरीर जिसे हम इतना ध्यान देते हैं, इस शरीर के लिए हम इतना सोचते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए इतना सेवा करते हैं, शरीर के लिए उसको खिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, उसके लिए इतना श्रृंगार करते हैं बॉडी के लिए। लेकिन बॉडी हमें दुख देती है, हमें कड़वाती है, बुरा बनाती है, बीमार बनाती है, हमें चिंता भय दुख देती है। तो ये समझिए, दुनिया भी जो है, जो एक समय बनती है, थोड़े समय रहती है, आदमी नाश हो जाता है।
जैसे 3 स्विच अभी जैसे सुबह 3 शुरू हुआ है, बाद में वो खत्म हो जाएगा, रात आ जाएगी। साइकिल है, डे नाइट साइकिल। तो ऐसे जीवन जो है साइकिल है, शुरू होता है जन्म से। बॉडी के लिए बॉडी साइकिल, बॉडी का जन्म होता है, आधा थोड़ा कम हो रहा है कि जीवन जो है या बॉडी जो है शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से। फिर बॉडी धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसा कि आप बड़े हो गए, बाद में बूढ़े हो जाओगे। नहीं सर, हम बूढ़े नहीं होंगे, हमने बोल दिया बॉडी को ये बुरा नहीं होना। बॉडी आपका सुनेगा नहीं, बॉडी आपका सुनता नहीं। क्यों? वो अपना नहीं है, वो हमें दिया गया है। जैसे हाउस आपको दिए गए हैं, नवोदय में एडमिशन को दिया गया है, ये आपका स्कूल नहीं, मतलब है आपका थोड़े समय के लिए। मतलब थोड़ा समय आपका क्या होता है, वो तो थोड़ा समय ये दिया है, परमिशन दिया है, एडमिशन दिया है, परमानेंट अपना नहीं है। तो बॉडी में वैसे जो है अपना परमानेंट जगह नहीं है और अपना नहीं है, जो अपना सुनता नहीं है। अपना कौन है? ये जो कहा मैंने आपको, भगवान अपने हैं, परमानेंट सदा के लिए। और हम जो है उन्हीं भगवान के संतान, अंश। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी दर्शति। ये अपनी पहचान भगवान ने बताई है। फिर हमें तो याद नहीं है, हम तो भूल गए हैं कि हम दुनिया में तो आए घूमने के लिए। हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हम किसके हैं, कितने समय का प्लान बना के आए थे, क्यों आए थे, हमें याद नहीं, हमें पता नहीं, हम भूल गए। हम सोचते हैं केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से जीवन सफल हो जाएगा, नहीं होगा। केवल नहीं, उसे नहीं होगा, केवल उसे नहीं होगा। हाँ, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो पढ़ सकता है, पढ़ना चाहिए। सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो जैसे यहाँ कॉमर्स के बच्चे भी हैं, वो लोग कहाँ अभी मैथ पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, उनको आवश्यकता नहीं है। बेसिक जो होता है टेंथ तक बहुत होता है। अभी 11th में उनको मैथ होता है, मैथ है, ऑप्शन दिया आपको, आपने लिया होगा, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, पानी ये है। लेकिन सबको जीवन को समझना आवश्यक है, कंपल्सरी। स्वयं को जानना आवश्यक है। स्वयं को जानने का मतलब ये है कि ये जाने हम दुनिया में जो आए हैं, सवाल तो बनता है मनुष्य के लिए, कहाँ से आए हम? आए हैं तो कितने समय का प्लान करना चाहे हैं, यहाँ के जाना भी होगा, तो कहाँ जाना चाहिए? ये मनुष्य सोच सकता है, गधा कुत्ता नहीं सोच सकता। तो गधा कुत्ता क्या सोचता है? जो बॉडी मिला है मैं हूँ, कुत्ता सोचता है वो कुत्ता ही है, गधा सोचता गधा ही है। वो कभी सोचेगा नहीं मुझे कुत्ता क्यों बनाया, मुझे गधा क्यों बनाया, ये मनुष्य क्यों है, गधा क्यों? ये कुत्ता गधा कभी समझ नहीं सकता। मनुष्य समझता है कि हाँ, जीवन क्या है, बॉडी क्या है, आत्मा क्या है, दुनिया क्या है। पशु पंछी केवल बॉडी में जीते हैं। मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से स्वयं को जानकर जीवन का उद्देश्य है। क्या जीवन का उद्देश्य? कुछ बनना नहीं, जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे महान अंतिम लक्ष्य जीवन का स्वयं को जानना होता है। क्यों? कुछ बनने के मतलब, कुछ बनने का मतलब क्या है? कुछ बनना मतलब जो हम नहीं है, और बनने के बाद भी हम वो रह नहीं पाएंगे सदा के लिए। थोड़े समय की बात होगी, जैसे कोई पीएम बन जाता है, वो सीएम बन जाता है, थोड़े समय जाता है। परमानेंट पीएम सीएम नहीं रह सकता। ऐसे कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने से वो सदा के लिए नहीं रह सकता, थोड़े समय की बात होती है, बाद में सब छोड़ना पड़ता है, दुनिया भी छोड़नी पड़ती है, बॉडी छोड़नी पड़ती है। तो समझिए, मनुष्य समझ सकता है कुछ ऐसा पाना है जो परमानेंट हो। परमानेंट हमने कहा लाइफ वैल्यूज, वैल्यूज अनेक है, जिसमें कुछ आपको बताया। सबसे बड़ी वैल्यू है लाइफ की वैल्यू। लाइफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल। व्हाई? लाइफ इज परमानेंट। ऐसा चाणक्य पंडित जो एक बड़े महान नीति के हुए हैं, नीति शास्त्र जो लिखे हैं वैदिक साइंस के आधार पर, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, इंग्लिश में बोलते हैं
one moment of human life is so valuable that all the wealth in the world cannot buy it. मनुष्य जीवन का एक क्षण इतना कीमती है, दुनिया का सब धन संपत्ति उसे खरीद नहीं सकता। ये मनुष्य जीवन का एक क्षण का इतना मूल्य है। Billions of gold coins cannot buy a single moment of life. क्यों? जीवन है दिव्य है। Life is divine and life is permanent. जो हम चाहते हैं, हम सभी सदा जीना चाहते हैं, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई बुरा बना नहीं चाहता, कोई बीमार होना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम बॉडी नहीं है। जो बॉडी बुरी हो ही जाती है, जो बॉडी बीमार हो जाती है, जो बॉडी का नाश हो ही जाता है बिना बोले, बिना बताए, बिना कोई नोटिस के। यहाँ कल क्या हो, कितने आना, बॉडी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये गाड़ी बंद पड़ जाए बोल नहीं सकते। लेकिन जानेंगे हम बॉडी नहीं है, हमें जीव है, जो आत्मा भी कहते हैं, जो भगवान का अंश है, दुनिया में जो आया है, भगवान के धाम से आया है। क्यों आया? थोड़े समय के लिए आया, घूमने के लिए, एक्सपोजर विजिट। हम किसे आए? एक्सपोजर विजिट ले आए, टूर पे आ गए, कितने के लिए आ गए, पूरा दुनिया घूम के आते हैं। जैसे लोग सोचते हैं वैकेशन में लंदन देख के आऊँ, सिंगापुर घूम के आऊँ, दुबई घूम के आऊँ। वैसे हम अपना घर जो भगवान का धाम है, वहाँ से इस दुनिया में आए हैं। यदि हम यहाँ के होते, यहाँ परमानेंट रह सकते, यहाँ सेटल हो जाते, लेकिन यहाँ कोई सेटल ना हो पाया, ना कोई सेटल हो पाएगा, क्योंकि ये गेस्ट हाउस है। तो दुनिया को बोलते हैं गेस्ट हाउस। यहाँ सब गेस्ट बन के आते हैं और सबको यहाँ से जाना पड़ता है, गेस्ट हाउस। लेकिन हम क्या सोचते हैं? गेस्ट हाउस ये मेरा परमानेंट हाउस है, ऐसा सोच लेते हैं, और वही हमें दुख देता है, वही दुख देता है। गेस्ट हाउस में समझो 10 लोग रुके हैं गेस्ट हाउस में, आप सोचो ये सब मेरे अपने रिश्ते हैं के लिए, तो हो नहीं पाता है, किसी को छोड़ जाता है, किसी को निकल जाता है बिना बोले हमको। तो ये समझिए इस दुनिया में अपना कोई परमानेंट साथी कोई अपना नहीं है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे गेस्ट हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, अभी हमें याद नहीं, बस यही बात है, हमें याद नहीं, हम भूल गए। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा तो अज्ञानी होता है, बच्चे को समझ नहीं आता तो कौन से घर में जन्म लिया है, कौन सा गांव है, कौन सा समाज है, कौन माता पिता है मेरे, उनका नाम क्या है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। बच्चे को अपना नाम भी कुछ नहीं होता है, बच्चे को नाम दिया जाता है, बच्चे को सब ज्ञान दिया जाता है। कौन देता ज्ञान? माँ देती है। मुन्ना ये तेरा पापा, मुन्ना ये तेरा भाई भैया, मुन्ना ये तेरी दीदी, ऐसा बोल बोल के बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। तो बच्चे समझता है हाँ ये दीदी है, ये दादा है, ये अपना चाचा है, चाची है, माँ है, बाबा है। समझिए बच्चे को ज्ञान देने वाला कौन होता है? माँ, जो जानती है। वैसे ही हम इस दुनिया में जो आए जन्म लेके, हमें ज्ञान नहीं है, हम भूल रहे हैं, हमें खुद का भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कौन दे सकता है? जो जानते हैं। तो कौन जान सकता है? भगवान जानते हैं। जैसे कंपनी जो होती है, जो मशीन बनाती है, मोबाइल बनाती है, वो जानती है मशीन कैसे बनी है, क्यों बनी है, कौन बनाया है, तो एक मैनुअल भी छापती है, एक गाइड इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। वैसे दुनिया बनाने भगवान ने जो दुनिया बनाई, तो शुरुआत में ही जो पहले जीव थे ब्रह्मदेव, उनको ये वेदों का ज्ञान दिया। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, वेदों में सब ज्ञान था। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य जो आधार, मुख्य विषय है वो वेद है। वेदों में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, आर्ट्स, साइंस, मेडिकल साइंस भी है, आयुर्वेद और लाइफ साइंस, अध्यात्म, वेदों में सब कुछ। लेकिन आज क्या हुआ है? ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम की वजह से, ब्रिटिश शासन जो यहाँ पे था इस देश में, अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी गई। मैकॉले मैक्सवेल ने इतिहास बदल दिए, भाषा बदल दी, संस्कृति बदल दी, वैल्यू सिस्टम बदल दिया। आज केवल हम शिक्षा का उद्देश्य समझते हैं एक जॉब पाना। शिक्षा का उद्देश्य केवल जॉब पाना नहीं होता है, शिक्षा का उद्देश्य मुख्य शरीर का निर्माण करना है, शरीर का निर्माण।
तो चैतन्य निर्माण कहाँ से होगा? जब हम जीवन को समझेंगे, जीवन का ज्ञान हम पाएंगे, तो जीवन की विद्या पाना ये जीवन का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो लोग अपना जॉब ले लेते हैं, बिना पढ़ाई लिखे लोग भी अपना व्यवसाय बिजनेस चला लेते हैं। तो ये समझिए कि अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य वो ज्ञान पाना जो हमें परमानेंट लाइफ दे सकता है, तो उसे कहते हैं आत्मज्ञान। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान। कि हम जो दुनिया में आए हैं, कोई है, तो कौन है, क्यों आए, किससे हैं, ये कहा गया। जैसे रीति के लोगों में दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। कौन सी शब्द लिखे? प्रज्ञानम ब्रह्म। यह मतलब पता होना चाहिए। किसी को पता है यहाँ पे, जो बड़े बच्चे ट्वेल्थ के, ट्वेल्थ साइंस के बच्चे, तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब सोचा है क्या होता है, क्या है। लड़कियों में कोई जानता है तो सोचेगा तो सिलेबस में एग्जाम में हो जाता है सर, इसमें क्या जानना चाहिए। यदि समिति में इतना अनंत शब्द का लिखा होता है, और ये शब्द ये है उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का एक सेक्शन है, भाग है, जिसे बोलते हैं तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज। तो 108 उपनिषद है, ये 4 होते हैं। एक उपनिषद का नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद उससे शब्द आते प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब ये है, सुनिए बहुत अच्छा, ज्ञान मतलब नॉलेज। ज्ञान जो सब प्रकार का ज्ञान होता है, अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, तो सब ज्ञान में सबसे महान, सबसे उत्तम ज्ञान प्रज्ञानम, प्रसिद्ध ज्ञान, हाईएस्ट ज्ञान, प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान आ गया है, ब्रह्मचारी ज्ञान नहीं, क्योंकि संस्कृत में कम से कम शब्द में संदेश मैसेज दिया जाता है। तो ज्ञान की बात ही हुई, ब्रह्म ही लिखा है, ब्रह्म ज्ञान लिखा है। प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। जो वेदों में दो शब्द हैं, किसे बोल सकते हैं? अहम, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये कहा गया कि अपनी पेशा के बोल सकते हैं, मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, ये बोल सकते हैं। ये मैं बोल नहीं सकता, कोई बोलता नहीं है कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं बॉडी हूँ, ये कोई बोलता नहीं। Nobody says I am body, nobody says I am body, we say this is my body sir, that is your body। मतलब बॉडी अलग है, हम अलग है, माइंड भी। ये बोलता आई का माइंड, नो माई माइंड बोलते, ये बोलते मैं बुद्धि हूँ, माई इंटेलिजेंस। तो ये बोलते आई एम दी सोल, आई एम जीव, आई एम आत्मा, ये बोलते। ये कहा गया अहम, मैं अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये सबसे महान ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। क्यों? ये आत्मा का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, जो परमानेंट है। परमानेंट क्यों है? ये आत्मा भगवान का अंश होने से, जो भगवान परमानेंट सच्चिदानंद है, तो आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद। कितनी अच्छी बात है। दुनिया में अपने माता पिता टेम्पररी, फैमिली टेम्पररी, बॉडी अपना टेम्पररी, दुनिया टेम्पररी है। यदि ध्यान दे, समझ जाए, हम जो दुनिया में आए हैं, हम जहाँ से आए हैं वो परमानेंट अपना निवास धाम है। हम जो है कोई जीव है, आत्मा सदा जीने वाला। जैसे हनुमान जी को बोलते हैं चिरंजीवी। क्या बोलते हैं हनुमान जी को? चिरंजीवी बोलते, चिरंजीवी सदा जीने वाले। तो कितनी अच्छी बात है, यदि जान ले हम भी जो जीव है वो भी सदा जीता है। जीव का कोई बुढ़ापा नहीं होता, जीव का कोई बीमारी नहीं होती, जीव को कभी मृत्यु नहीं आती। आत्मा को कहते हैं अजन्म, आत्मा है अजन्म। अजन्म होने से आत्मा क्या होती है? अजर। अजर, अजर मतलब बूढ़ा न बनने वाला, अजर। तो आत्मा उसी का बन जाती है अमर, न मरने वाला। बॉडी तो रोज बंद पड़ जाती है, तुम सोते हैं और भूल जाते बॉडी को। नींद में कहाँ बॉडी का ध्यान होता है, बॉडी को भूल जाते हैं। लेकिन नींद में भी मैं हूँ, सांस चल रही है, ये एहसास होता है। क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं, आत्मा कभी थकती भी नहीं, आत्मा कभी बदलती नहीं। आत्मा बदलती नहीं, कैसा अनुभव है?
जन्म से लेकर अब तक आपका अनुभव है, बॉडी तो बदल के आया। आप याद कीजिए 15 साल पहले या 10 साल पहले आप कितने बड़े थे, मतलब बॉडी कितना बड़ा था, बॉडी छोटा था 10 साल पहले। आपका जन्म जब हुआ था तो आपका फोटो क्या होने माता पिता, वो फोटो देखो, 1 साल का फोटो देखो, अपना पहले जन्म का फोटो, आज की फोटो देखो, बॉडी पूरा बदल गया है। लेकिन आपके माता पिता कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तू भी बदल गई, तू हमारी बेटी नहीं है, जो हमारे बेटे नहीं था, मुन्नी, छोटा मुन्नी, ऐसा उड़िया, ये गुड्डी, ये हमारा बेटी था, अभी तो रोने की हो गई हो। नहीं, बॉडी बदलने से व्यक्ति बदल, या आपको का अनुभव है, मन बदल गया, अपनी बुद्धि बदल जाती, सोच बदल जाती है। लेकिन हमें लगता है जो मैं था, जो मैं थी बचपन में, मैं वही हूँ, बस विचार बदल गए, सोच बदल गई, एक लुक बदल गया, साइज बदल गया, लेकिन मैं नहीं बदला। आपके जो संबंध है माता पिता से, भाई बहन से या समाज से, बदलते नहीं संबंध। ये संबंध बॉडी से नहीं होते, संबंध आत्माओं से होते हैं, जीव से होते हैं। अंतिम बात आज मैं बोलता हूँ, ये समझिए कि हम जो है वो कौन है, आत्मज्ञान है। हम जो है कौन है, किससे हैं, हम जो है आए कहाँ से आए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। आज के समाज का दुर्भाग्य है, हम इतना एमफिल, पीएचडी, बीटेक, एमटेक, एमएससी क्या क्या नहीं सोचते हैं, मैंने इनको इतना सोचते कि ये बड़ा महान ज्ञान है। लेकिन जीवन के विषय में, अपने विषय में 5 सवाल का जवाब हम कभी सोचते नहीं, न कभी विचार करते। कौन सा सवाल जो बताया, यदि हम एकदम लेके आए हैं, कहाँ से आए सवाल तो बनता है। यदि हम आए हैं, कितने समय के लिए आए हैं, नहीं तो हम त्रिपुरी है, कौन है, हम किससे हैं, तो हम किससे हैं, सोचना चाहिए। यदि जाना ही है एक दिन, तो कहाँ जाने का प्लानिंग करूँ, बुकिंग कहाँ पर करना है, टिकट विचार तो चाहिए, नहीं जहाँ लेना है ले जाओ, ले जाना है ले जाओ, ये तो गधे का विचार हो गया। ये सोचता ही नहीं है कि जीवन की दिशा हमें निश्चित करनी है। जीवन की दिशा, तो जीवन की दिशा कभी निश्चित हो पाएगी कि हम स्वयं को जानेंगे। तो बस ये समझिए, हम जो जीव है वो भगवान के धाम से आया हुआ, थोड़े समय के लिए, थोड़ी इच्छा से आया है, अपनी इच्छा से, भगवान ने नहीं भेजा है, हम अपनी इच्छा से आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। और फिर यदि हमें एक दिन जाना है तो हम वहीं जाएं जहाँ से हम आए हैं। जो हमने पहले गाया, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। इसका मतलब यही है, वेदों के वाक्य हैं जो बताते हैं, गमय जाइए, गमय मतलब जाना, आगमन मतलब आना, गमय जाइए। तो क्या कहा गया, सद्गमय। पहले कहा गया असतो मां, असत का मतलब नाशवान, बदलने वाला, न टिकने वाला, असत, असतो मां, मानिस नहीं। ये दुनिया जो है नाशवान है, बदलने वाली है, या हमेशा मत रहो। इसे नवोदय में आपको बोलेंगे हमेशा मत रहो, नवोदय में कोई रहता नहीं है, कोई रहता नहीं, ना प्रिंसिपल, ना एसी, ना डीसी, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट नवोदय में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता। इसको पता है कि अपना नहीं है, कि यहाँ पे आए हुए हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन जीवन के विषय में हम सोच नहीं पाते। हम अज्ञान केवल सोचते हैं ये बॉडी मैं हूँ, जिस हमें जन्म हुआ वो अपना है और दुनिया भी अपनी है, और यहाँ हम सेटल हो जाएंगे बंगला बना के। नहीं, हाँ कुछ बनने की आपकी इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, अवश्य कीजिए, लेकिन उसके लिए चाहिए फोकस, उसके लिए चाहिए मन शांत, शांत मन के लिए, और बुद्धि में विवेक का जगह होना आवश्यक है। आज की समस्या क्या है बच्चों की, समाज की, कि लोग अशांत है, दोनों मन अशांत है, भटके हुए हैं, बुद्धि भी सोई हुई है, तो सही गलत समझ नहीं पा रहे हैं। इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं वैसे तो, लेकिन नशा से बच नहीं पाते, नशा के शिकार हो जाते हैं। हमने देखा कि बीटेक के समय 25 साल पहले मुंबई में आधे बच्चे, 50% बच्चे, जो कि टॉप कॉलेज है देश का, है, वहाँ पर भी आधे बच्चे नशे के शिकार होते देखा, बड़ा दुख लगा था। जो बच्चे 99, 98 मार्क्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आए हैं यहाँ पे,
वो समझ नहीं पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है। कितने बच्चे वीडियो 70 यूनिट्स पढ़ाई के समय नशे के शिकार हो जाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, शराब पीते हैं। क्यों? आत्मसंयम नहीं, आत्मसंयम। किसी विषय बारे जानते हैं बॉडी साइंस, लेकिन जब आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मविश्वास भी नहीं, आत्मबल भी नहीं, आत्मसंयम भी नहीं। ये वैल्यूज है। आत्मज्ञान सबसे बड़ी वैल्यू है, आत्मज्ञान जो हमें आत्मबल देगा। जो उपनिषद का वाक्य है, बल ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि बल ही जीवन है। वो बल कौन सा? बॉडी का नहीं, आत्मबल, आत्मा का बल, हम स्वयं का बल जो हमें क्या देगा? आत्मविश्वास देगा। बॉडी साइज, बॉडी का लुक आत्मविश्वास भी देता है। आत्मज्ञान भी आत्मविश्वास देता है कि हम कौन हैं, हम किसके हैं। वो हमें ज्ञान क्या देगा? शक्ति देगा, बल देगा। और इधर संयम होगा जीवन में, संयम, मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, वाणी पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम। तो फिर क्या होगा? इंद्रियों पे संयम, है ना, इंद्रियों पे संयम, तो शांति होगी। शांति दुकान में नहीं मिलती, शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल दो शांति ले लेंगे, आधा चम्मच रोज नाश्ते में खाएंगे, शांति मिल जाएगी। ऐसे शांति नहीं मिलती, शांति की अनुभूति होती है। शांति क्या होती है? अनुभूति। यू फील एक्सपीरियंस पीस, तभी तो संयम दिखाते हो। संयम कि हम गलत चीज से बचेंगे, सही चीज करेंगे। संयम, गलत चीज नहीं बोलेंगे, गलत चीज नहीं खाएंगे, गलत चीज नहीं पिएंगे। संयम, गलत चीज नहीं देखेंगे। तो संयम जब होगा बच्चों तो शांति होगी। तो शांति जब होगी तो सुख समाधान भी अनुभव आएगा। जैसे शांति दुकान में मिलती, वैसे सुख समाधान भी दुनिया में कहीं पैसा देके नहीं मिलता। हाँ, आपको दोनों मिल जाएंगे, वस्तु मिल जाएगी जो आपको थोड़ा 2 समय 2 मिनट 5 दिन 2 दिन सुख देगा। हाँ, हमें नया गाड़ी मिल गया, नया गाड़ी मिल गया। लेकिन जीने वाला सुख जो है, समाधान वस्तुओं से नहीं मिलता, वो अपने अंदर अनुभव होता है। जो हम जानेंगे, क्या जानेंगे? स्वयं को जानेंगे। तो ये मुझे कमी था कॉलेज के समय, जो मुझे पता नहीं था हमेशा क्या कमी है, क्या कमी है। जो भगवत गीता का ज्ञान थोड़ा सुनने से, थोड़ा समझने से जीवन का समाधान होगा। तो जब जानेंगे कि हम तो परमानेंट है, हम तो जिसके हैं भगवान को भी परमानेंट है, हम जहाँ से आए हैं जो दुनिया भगवान का धाम वो भी परमानेंट है। तो फिर आत्मा का स्वभाव जो है सब फिर आनंद, आत्मा आनंदमय है। आत्मा क्या है? आनंदमय। बॉडी क्या है? दुखमय। बॉडी दुखती है, जो मैं पहले बताया, बॉडी दुखती है। हैकी मास की बॉडी है तो हम नहीं, बदलती रहती है और हमें बड़ा तकलीफ भी देती है, दिमाग भी देती है। ये जानेंगे कि हम तो ये बॉडी नहीं, तो क्या चिंता करना। हाँ, कुछ हो जाए बॉडी को तो उसे इलाज कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, रिपेयर कीजिए। अरे दुखी मत होइए, ओ बॉडी को क्या हो रहा है, बॉडी को होना ही है, बॉडी बुरा होगी फिर खत्म होना ही है। ये जब ज्ञान होगा हम कौन हैं, हमें दुख नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी, हमें भय नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है जब जानेंगे कि हम तो परमानेंट है और हमें जो एक दिन जाना होगा हम वहाँ जाएंगे जो क्या है अपना माता पिता का परमानेंट घर, भगवान का घर जो है ना। मृत्यु अमृतम करें, दुनिया में मृत्यु लोग कहलाती है, मृत्यु लोग। भगवान का धाम क्या कहलाता है? अमर लोक, अमर धाम, जहाँ दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं होता। तो मुझे ये बोलना था कि जीवन के विषय में यदि हम स्वयं को जान ले, जीवन को समझ ले, तो जीवन का समाधान आनंद मिल सकता है। IIT के लोगों में 3 शब्द है, तो जिससे अपनी बात आपकी चर्चा है खत्म हो जाएगी। किसे बोलिए? योग कर्मसु कौशलम, ये भगवत गीता के शब्द हैं जो भगवान बताए हैं और IIT ने अपने लोगों में लिया है। नवोदय समिति ने 2 शब्द लिए, प्रज्ञानंद ब्रह्म उपनिषद से। IIT ने 3 शब्द लिए हैं भगवत गीता से। जैसे LIC में जो है कंपनी LIC, वो भी 2 शब्द लिए हैं, योगक्षमम वहाम्यहम, और ये गीता के शब्द हैं। तो जो योग कर्मसु कौशलम, ये सारे कर्मों में, अपने सारे कार्यों में सबसे बड़ा कौशलता क्या है? तो बोलते हैं योग। योग कर्मसु कौशलम। योग मतलब जुड़ना, योग।
योग जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। हम जिसके हैं, जैसे थोड़ा बच्चा जो है माता पिता के साथ जब होता है तो उसे सब कुछ मिलता है। जिसके माता पिता का कनेक्शन नहीं है वो अनाथ हो जाता है तो फिर मांगता है। लेकिन जो बच्चे को माता पिता साथ में है उसे सब कुछ मिलता है, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। वैसे जब हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान से जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? कई बार लगाएंगे नहीं, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, सेवा का भाव, अपनापन, संबंध ज्ञान, ये जब होगा हम तो फिर भगवान से जुड़ सकते हैं विश्वास के साथ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नीच रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, जो हो पाएगा। जो दाता भगवान अपने माता पिता है उनसे हम शक्ति ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे? श्रद्धा के साथ। जब होगा विश्वास, ज्ञान होगा कि हाँ मैं भगवान का हूँ। हनुमान जी जैसे शक्ति पाते हैं कहाँ से? भगवान से पाते हैं। भगवान का नाम लेते, भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं, हनुमान जी को सब शक्ति बुद्धि मिलती है। तो हम भी जो भगवान के बच्चे हैं हमें भी शक्ति मिलेगी। या धर्म की बात नहीं है। जीसस जो थे यीशु वो भी भगवान की बात बोलते थे, मोहम्मद पैगंबर भी भगवान की बात बोलते थे, और गीता भागवत तो पहले से भगवान की बात बोल ही रहे हैं। गीता की देवता जो है भगवान का नाम रखती है। तो ये समझिए सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों में, सभी संत महात्माओं ने भगवान का नाम जपना ही बताया है। तो भगवान अपने माता पिता है। ओके, तो यदि हम भगवान से जुड़ते हैं एंगेजमेंट है ना, कनेक्शन, तो हमें विश्वास होगा, हमें भय नहीं होगा, हमें कोई चिंता नहीं होगी कि भगवान साथ में है तो चिंता की क्या बात है। जैसे बच्चे के पास माता पिता होते हैं, बच्चा विकास होकर खेलता है, माँ बाप चले जाए तो चिंता हो जाती है, भय लगता है। वैसे ही पता हो हम कभी अकेले नहीं हैं, भगवान परमात्मा हम सबके हृदय में साथ में है। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तो हमें कोई भय नहीं होगा, कभी नर्वसनेस, चिंता नहीं होगी, हम भटकेंगे नहीं, हम गलत का शिकार नहीं बनेंगे। हमने अनुभव किया है। बच्चों आप लोग ध्यान से सुना। विश्व ऑल द बेस्ट। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? कुछ फायदा होगा इससे? थोड़ा जीवन की बात, आत्मज्ञान की बात या भगवान की बात, ये समझने से जीवन की दिशा मिलेगी। आप जो बनना चाहे, जो कुछ करना चाहे, उसमें फोकस हो पाएगा। आप अपना काम कीजिए। एग्जाम के लिए बोलते हैं, आपके 12 वाले बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम्स का अभी आने वाली है, आगे तो बहुत टाइम है, लेकिन पढ़ाई का भी करना है। तो क्या करना है ये समझिए कि अपना काम है किताब खोलना, अपना काम है सीखने का प्रयास करना, लर्निंग, समझने का प्रयास करना, ज्ञान लेने का प्रयास करना। अंक क्या आएंगे सोचने की आवश्यकता नहीं है, आएंगे, अवश्य आएंगे। आपका फोकस चाहिए, आपका माइंड चाहिए, मुझे ज्ञान लेना है, सीखना है, तो मन लगेगा। एग्जाम का सोचोगे तो मन धोखा देगा, क्या बोलेगा एग्जाम तो बहुत दूर है, सोचिए वो 2 महीना वैकेशन आपका, सारे किताब आप एक बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो ज्ञान लेने की बात हो, इच्छा हो, किताब पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा टीचर बता देंगे बाद में। तो लर्निंग शुड बी और मोटिवेशन, लर्निंग, न कि एग्जाम, न कि मार्क्स। जो केवल सोचने से नहीं आते हैं, यदि ज्ञान लिया है तो मार्क्स अवश्य आएंगे, चिंता मत कीजिए। तो मैंने पहले बताया सुख जो है हम चाहते हैं अंकों में नहीं होता है, अपनी भावना, सोच क्या है। यदि अपनी सोच ज्ञान लेने की है, सीखने की है, तो आपको हमेशा आनंद मिलेगा, आज भी मिलेगा पढ़ते समय। ये नहीं कि मार्क्स मिलने के बाद आनंद मिलेगा। जब ज्ञान लोगे, सीखोगे, तो आज भी आपको फोकस होगा, शांति होगी, आनंद होगा। और आगे भी जो है कि हमें जो जॉब लेना होगा तो उसे समझना चाहिए सेवा, कम टू लर्न, गो टू सर्व। सेवा का मन हो, अच्छा काम करना है, अच्छा कुछ सेवा करना है, तो भी आनंद देगा। फिर जॉब करने से सुख नहीं मिलता, फिर पैसा मिलता है। ये जब सेवा का मन हो जॉब में, पैसा ही मिलेगा तो आनंद में आएगा। जैसे मैं अभी 3 साल से देश में जा रहा हूँ, एक पैसा ही कमाना नहीं है, ना कुछ बनना है, ना पाना है। लेकिन जो सेवा का मन है, कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा कुछ सेवा करना है, तो हमें अनंत सुख समाधान मिलता है, उत्साह भी है और समाधान भी है। तो कोई अपने बस ऐसे काल्पनिक चीज में बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। जब हम ज्ञान लेकर सेवा का, अच्छा काम करने का विचार रखते हैं तो अपने हृदय में संतुष्टि, समाधान हमें अवश्य मिलता है। जब मिलेगा तो आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा।
ठीक है, तो मैं आपकी कैंपस में शाम तक हूँ। आज मुझे वापस जाना है गुवाहाटी शाम को, तो किसी को बाद में मिलना होगा, पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। हेलो, रेस्पेक्टेड जगन्नाथ दास जी, टीचर और डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लाइफ वैल्यू के क्रमबद्ध जो चरण है हमें अवगत कराए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा और उसको अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, कोई भी हमारे जीवन में आता है, जैसे सबने अभी कुछ अपने लाइफ वैल्यू के स्पीच जो डिलीवर किए आपके बीच में, आपने सुना समझा, आपने मूल्यांकन किया होगा। कोई टीचर आपकी क्लास में आता है, आप मूल्यांकन करते हैं। कोई बाहर से कोई भी गेस्ट आता है, आपको कुछ पढ़ाता है या समझाता है, तो आप मूल्यांकन करते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। कभी लगता है अरे क्या है, हमारा वैसे समय बर्बाद कर दिया, ये तो बेकार है। हम दूसरों को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि हम कैसे हैं दूसरों के लिए? तो सर की जो बात थी, सबसे पहला जो फर्स्ट प्रयास है वो अपने आप को जानना, और जिसने अपने आप को जान लिया, समझ लीजिए उसने सबको जान लिया, मतलब पूरी दुनिया को जान लिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने टैलेंट को जानो, आप अपनी क्षमताओं को जानें, आप अपने जीवन में क्या अचीव कर सकते हैं उसको पहचानें, और यदि उसी मार्ग पर आप चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। इसीलिए प्यारे बच्चों, सर के द्वारा जो बताई हुई बातें हैं, अपने आप को जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, जानो। पीछे कुछ बच्चे अरे पता नहीं आज सर ये पढ़ा देते, वो पढ़ा देते, पढ़ाई लिखाई ये सब चलता रहता है, लेकिन ये ऐसी बातें जीवन में कभी कभी आती हैं। बीमार व्यक्ति कोई नहीं चाहता है कि मेरे इंजेक्शन लगे, मुझे कड़वी दवाई पीनी करे, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है और कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। तो कुछ जीवन के अमूल्य क्षण ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में उचित नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए, काफ़ी बोर हो गए आप बैठे बैठे, लेकिन आगे आपको बैठना सुनना ये अभी से आप हैबिट में डाल दीजिए। आप आगे पढ़ाई करेंगे, 3-3, 4-4 घंटे के स्पीच होते हैं, आपकी क्लासें होंगी, आपको आधा घंटा बैठने की क्षमता ही नहीं है, आप में कैपेसिटी नहीं है, तो आप कैसे आगे जाकर के क्लास को अटेंड करेंगे, कैसे सुनेंगे? जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से आप सही नहीं बैठ पाओगे, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत लॉस होगा। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गए, एक बार में फीस डिपॉजिट कर दी और उसके बाद में आप सुनो ना सुनो, घर वालों के पैसे चले गए, लेकिन हमको क्या फायदा हुआ? हम सक्सेस ही नहीं हुए, क्या मतलब हुआ? तो इसलिए प्यारे बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा आनंद है अपने आप को बच्चे बनाए रखें। यदि आपने सोच लिया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो समझ लीजिए आपने अपने एंजॉय को अपने से दूर कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चे ही रहें और बच्चे बन के जिए। उस लाइफ का जो एंजॉय है वो कभी किसी भी और आने वाले भविष्य में नहीं मिलता है। इसलिए आप बच्चे रहें, बच्चे बने। और मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सर का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस विद्यालय में जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ जरूर उनको फॉलो करेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे किसी ने कहा है कि भरा नहीं है भावों से, भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको अपने आप से प्यार नहीं, जिसको अपने आप से प्यार नहीं। तो इसलिए सभी आप आज से अपने आप से प्यार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।